कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे, कितनी माँओं के आंसू देके कितनी और रुलाओगे। हर सू मेरे आग लगी है, कितना और जलाओगे, कितना और जलाओगे। है जागती वादी सारी, जिक्र जरा अपने भी तू अंजाम की। कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की। ओ कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहर Pak American Skilled Women Organization and Paswo Social Adult Daycare Center hosted an impressive event to express unity with the people of Indian occupied Kashmir, especially Kashmiri women, on Kashmir Solidarity Day. The event was largely attended by Pakistani and Kashmiri diaspora living in the United States. Mohammad Taj Khan, Senior Vice President, and Raja Mukhtar, Senior President of Kashmir Mission USA, were the chief guests. Earlier, Paswo held a protest against Indian brutalities in occupied Kashmir at its center at Coney Island, Brooklyn, New York. Paswo's women and men carrying banners raised slogans against India and supporting Kashmiri's freedom from Indian clutches. Addressing the event, CEO Paswo Tia Shehnaz said that Pakistanis, Kashmiris, and Muslims across the world will have to struggle in unison for the freedom of Kashmir. She said that Kashmir Freedom Movement is the struggle for the survival and security of Pakistan, and India would never be able to suppress it. Mohammad Taj Khan, Senior Vice President of Kashmir Mission USA, said that they will keep exposing the draconian face of India in front of the world. Other speakers said that the Indian government, with all its inhuman tools and tactics, had failed to deter the determined Kashmiris from seeking their right to self-determination through a peaceful struggle. They said, "It is time the world takes notice of India's grave human rights violations in occupied Jammu and Kashmir, including crimes against humanity, war crimes, genocidal acts, and the threat of forced demographic change, which is in complete violation of the Geneva Convention." The pattern of ongoing atrocities in Jammu and Kashmir reflects the anti-peace and anti-Muslim Hindutva agenda of extremist RSS-BJP dispensation. Through its machinations, India has destabilized the entire region. India's illegal and unilateral steps were rejected by Pakistan and the Kashmiris. They said that Pakistan stands united with Kashmiri brothers and sisters and committed to their legitimate struggle for self-determination. Modi's fascist policies of oppression and violence have failed to crush the spirit of the Kashmiri resistance in occupied Kashmir.
They emphasized that Kashmir is an internationally recognized dispute, the resolution of which is firmly anchored in the relevant UN Security Council resolutions. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम क्या चाहते हैं? आजादी। ये माएं मांगे आजादी, ये बहनें मांगे आजादी, है हक हमारा आजादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। Indian forces from Kashmir. Out. Killer forces from Kashmir. Out. Terrorist forces from Kashmir. Out. Houthi forces from Kashmir. Out. Houthi forces from Kashmir. Kashmir बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद पासवो एडल्ट डे केयर में। आज की तकरीब जो है वो खुसूसी तौर पर हमने मुनक्किद की है कश्मीर के हवाले से कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जो एक अरसे से जो है आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, तो हम इतना अपना किरदार अदा कर सकते थे कि आज के दिन हम उनके साथ खड़े और हम उनको भूलते नहीं हैं। 5 फरवरी जो है वो सॉलिडारिटी डे है, तो इस मुनासबत से आज की हमने ये तकरीब मुनक्किद की और आप सबका बहुत शुक्रिया कि इतने कोल्ड वेदर में और वीकेंड पे आपने अपना टाइम निकाला और जद्दोजहद में अपना भी उतना ही हक अदा किया जितना कि हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि बारिश का एक कतरा हो या चिड़िया की चोंच में कोई छोटा सा पानी का कतरा हो, हम सब उतने ही जिम्मेदार हैं उस जद्दोजहद में जितना कि वहाँ पे कश्मीरी हमारी माएँ बहनें और भाई लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। बाकायदा प्रोग्राम का जो है वो मैं आगाज करना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े तो बड़े, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है बच्चे भी ये समझते हैं, और कोई हो ना हो हम आज ये अहद करते हैं, और कुछ हो ना हो हम आज ये अहद करते हैं कि मासूम कश्मीरियों की आवाज़ पर सारे पाकिस्तानी लब्बैक करते हैं। तो बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है वो कश्मीरी वुमेन को खराज तहसीन पेश करने के लिए है। पासवो इज़ अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सो वी आर सल्यूट टू कश्मीरी वुमेन हु आर सैक्रिफाइसिंग एवरी डे with their life, with their respect and for everything। कि इतना आसान नहीं होता एक औरत के लिए जो है वो काम करने के लिए बाहर निकलना। बहैसियत औरत मुझे खुद भी बड़ा जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि इवन के बच्चों के साथ आप कोई काम करना इट्स नॉट ईजी, लेकिन आज़ादी की जंग लड़ना और औरतों के लिए वो किस तरह से लड़ती हैं, मैं कहती हूँ मेरा उनको सलाम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सब बहनों का। मैं ऑनेस्टली आज का आप ये ना देखें कि हम तादाद में यहाँ कम बैठे हुए हैं, जो जिन लोगों को आपने यहाँ बुलाया है और ये प्रोग्राम किया है, इसके असरात आप हैं आगे आने वाले टाइम पे आपको मिलेंगे। इस सबसे बड़ी जो एक नई बात आज के दिन में हुई है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और फिर मेरी बहनों ने ये प्रोग्राम किया है। तो ये मेरे लिए, ये कश्मीरियों के लिए, मकबूजा कश्मीर की उस बहन को, जो मकबूजा कश्मीर की बहन आपकी जो हिंदू के गोली के साए में सांस ले रही है, आपने आज उस बहन के लिए यहाँ ये प्रोग्राम किया है कि टेररिस्ट मोदी और आरएसएस के गुंडे और वो हिंदू, वो जालिम, वो जो बुज़दिल हैं, लेकिन जब निहत्ते कश्मीरी उनको नजर आते हैं तो वो दिलेर बन जाते हैं। उनके ऊपर जुल्म करने के लिए उन्हें दरिंदू को भेज रहे हैं और वो उन हमारी बहनों की इज्जत लूट रहे हैं। मैं आप अपने साफी भाइयों से, असद साहब, आपसे, अपने तमाम दोस्तों से, राजा मुख्तार साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि तादाद में हम अगर लाखों भी बैठे हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जज्बा इन बहनों के पास है, जो जज्बा मेरे इंसाफी भाइयों के पास है, जो आप लोग लेके यहाँ आए हैं, इसकी हमें जरूरत है। यही हमें आगे लेके जाएगा, यही मकबूजा कश्मीर की उस बहन की आवाज बनेगा, यही उस मकबूजा कश्मीर की बेटी को आजादी दिलवाएगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, आज भी जो है उनसे उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं। उनके 18 साल का बच्चा, और जब जो बच्चे छीने जाते हैं वो 16 से 18 और 22 साल की उम्र के बच्चों को आज गायब किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये बात आप नोट करें अपनी डायरी में, ये बात आप याद रखें। मैं अपने साफी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं,
खुदारा इसके ऊपर लिखें, आपके कलम में बड़ी जान है, आप जो कुछ कर सकते हैं हम हजारों में भी इकट्ठे होकर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे मिन्नत करके ये बात कहता हूँ कि इस बात को जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं। मैं यकीन से ये बात कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया अगर हमारी मुखालफत करेगी फिर भी हम जो है मकबूजा कश्मीर को आजाद करवा के रहेंगे और उसको पाकिस्तान के साथ शामिल करके रहेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि कश्मीर आजाद होगा और वो पाकिस्तान के साथ शामिल होगा इंशाअल्लाह। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर के अंदर मेरे कुछ साथी मायूस होकर कभी कभी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप मकबूजा कश्मीर में चले जाएं, गोली आ रही है तो वो ये बात कहते हैं कि ये गोली जब मुझे लग जाएगी, मैं जब शहादत हो जाएगी तो मुझे पाकिस्तानी फ्लैग में जो है वो लपेट कर दफन करना है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, उन लोगों के जज्बात के साथ आप बहनों ने यहाँ प्रोग्राम किया है, वो भी इसी तरह आपके लिए जज्बा रखती हैं और वो दिन मेरा रब मुझे दिखाएगा कि वो लोग, वो मकबूजा कश्मीर की बॉर्डर खत्म होगी और आप बहनें अपना वफद लेके वहां जाएं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आज से आप तैयारी करें, वो वक्त दूर नहीं है मेरी बहन कि आप लोग अपना ये वफद लेकर वहां जाएं। आप यहाँ लोगों की जो खिदमत कर रही हैं, ये इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, अल्लाह ताला की जात आपको इसका अजर देगी। और हमसे जिन रात जब आपको हमारी जरूरत हो हम आपके उस काम में जो कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई लाखों डॉलर दे, कोई $10 दे, कोई 50 सेंट दे दे, लेकिन जज्बा होना चाहिए कि वो किस जज्बे से 50 सेंट दे रहा है। लाखों वालों से अगर उसका जज्बा सही है तो उसके वो 50 सेंट जो है ना वो ज्यादा वैल्यू रखते हैं। इसलिए ये देना लेना मेरे उस रब का काम है। ये आजादी को रब देगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को और हमें ये आजादी मिलेगी, ये हमारा हक है। हर इंसान आजाद पैदा हुआ है, उसका ये हक है, उसका ये राइट है कि वो अपना राइट ले। मैं मोदी को ये बात कहता हूं कि टेररिस्ट मोदी, तू और तेरे आरएसएस के गुंडे मकबूजा कश्मीर के रहने वाले बहन भाइयों से उनकी आजादी छीन नहीं सकते। जो मर्जी आप कर लें, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने कश्मीरी को बहुत लालच दिया है। मैं अल्फिया आपसे कहता हूं कि जितनी उन्होंने उनको लालच दी है, उन्होंने उसको जूते की नोक पे भी नहीं रखा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, इंशाअल्लाह अज़ीज उनको आजादी मिलेगी। काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सबसे पहले तो मैं पासो के ऑर्गेनाइजर उनका मशकूर हूँ, तेज शहनाज और डॉक्टर सलमा। आपकी स्टोरी सुनी तो यकीन जनो दिल पे बहुत ही ज़ख्म ताज़ा हो गए कि जिस तरह आपने अपनी फैमिली के बारे में जिक्र किया। तो हम सबसे पहले यहाँ जो मीडिया के हजरात हैं, मैं मंजूर भाई का बहुत ही मशकूर हूँ कि ये जो कश्मीर के लिए जो काम करते हैं ना, ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो हम फ़ख्र से कहते हैं ना एटम बम है, तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर वो चीज़ है कि हम जब स्ट्रीट पर जाकर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमारी वहाँ स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी होती है और उसको बढ़ा कर दिखाना वो इनकी महारत है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं थोड़ा सा कश्मीर के बारे में समझा दूँ कि कश्मीर का मसला कैसे है। कश्मीर जो है ना वो महाराजा हरी सिंह की स्टेट थी और जब पाकिस्तान बना उस वक्त 565 रियासतें थी जिनको ये हक दिया गया था कि वो चाहे तो हिंदुस्तान के साथ चली जाए चाहे पाकिस्तान के साथ। लेकिन इसमें आज हम भूल गए हैं 2 रियासतों को और पूरी दुनिया ही भूल गई है, जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन, जिनके गवर्नर जो है ना मुसलमान थे, उन्होंने हिला के पाकिस्तान किया था। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उस पॉपुलेशन की वजह से ये फैसला काबिल कबूल ना हुआ। और इसी तरह कश्मीर का जो महाराजा था उसने ना तो हिला के पाकिस्तान किया था ना हिला के हिंदुस्तान किया था। तो उसने कहा था कि हम अलग रियासत रखेंगे, इसको आज़ाद ही रखेंगे। तो ये हुआ ये कि जब पाकिस्तान की तरफ से कबालियों ने और कश्मीरियों ने मिलकर आज़ादी का नारा लगाया तो महाराजा की फौज जो डोगरा फौज थी वो बहुत ही कम ताकत वाली थी, तो उसको इन्होंने मार भगाया। पहले घरों में बैठे हुए हमें कुछ पता नहीं था इस चीज़ का कि कश्मीर का और ये सारे मसले किस तरह चल रहे हैं, बस सुनने में आया था। लेकिन जब से मैं पासवो की उसमें शामिल हुई हूँ, ख़ास तौर पे अतिया शहनाज के साथ,
تو ہم لوگوں میں بھی وہ جذبہ اور وہ دعائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی پیاری بہنوں کے لیے، اپنے وہاں پہ جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں سب ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم یہی ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور یہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر قدم پہ. کی گہرائیوں سے کشمیریوں کے لیے دعا کرتی ہوں دن رات. اللہ میاں ان کو آزاد کرے، اللہ میاں ان کو سکون دے. جیسے ہم لوگ آزادی سے رہ رہی ہیں، ہماری کشمیری بہنیں بھی اسی طرح آزادی سے رہیں. خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کشمیر کے یکجہتی کے دن کے منانے کے لیے. کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو، میں وادی ہوں شہیدوں کی، مجھے کشمیر کہتے ہیں. ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ہر سال اس یکجہتی کے دن کو مناتے ہیں، اور جب سے ہماری پاسو آرگنائزیشن بنی ہے، عطیہ نے ہم سب کو مزید پالش کر کے اس قابل بنایا کہ ہم یہاں پر جمع ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس سے پہلے ہمارے لیے کوئی اور پلیٹ فارم نہیں تھا. تو ہم تمام بہنیں اور تمام محترم حضرات یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کشمیری بہن بھائیوں کو، ان معصوم بچوں کو جن کی جو بن کھلے ہی مرجھا گئے وہ پھول، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ان کی آزادی کے لیے دنوں رات کوشاں ہیں. The crazy, barbaric action done by Kashmir against the women over there. I mean, it's an outrage, and we don't understand why the United Nations and the United States should be more involved. And that's why it's so important for us to gather. I think in the last year, myself and Atiya, we went to the Bronx when they had the fire, and we did stuff for Haiti when they had the problem. I think the solution, or what we have to be doing as a people is get involved. I mean, it's ridiculous that people are getting killed, whether it was there, whether it was in Syria, whether it was in Iran, or whether it was Yemen. People are being killed around the world, and the governments are just busy fighting each other, and not doing anything. I think that we just have to organize much more together as an interfaith coalition to fight these genocides. And the 21st century, rape of women should not be an acceptable thing. We have to do more as a people. And as the more we do it, every step, every prayer session, every meeting that we have, we just have to embarrass our own government into taking proactive action. Because this is sickening. I just went downstairs because I had access to my internet, and I just Googled what's going on in Kashmir, and I'm embarrassed that I was unaware of the situation. But this should be happening in today's century. Is sickening. It reminds me of the Holocaust. I mean, sickening that things like that happen, and we should do more than that. More. This should be our first prayer, but we should go to the UN. We should protest. Let's organize groups just like we did in the Bronx and other things. I'm all for it, ready to go. And God bless all of you here that are here for this prayer session. And God bless you, Atiya, for all the work you do. پاکستانی اور کشمیر کے جو غیور فرزند ہیں، ان میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے 18 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نیو یارک میں اور نیو یارک کی جتنی بھی جو آفیشیل پلیسز ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہیں، وہاں پہ مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں کشمیر کے برادرز اینڈ سسٹر کے لیے. ان برادرز اینڈ سسٹرز کے لیے جو ٹائرنٹ بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، اور ہماری جو سسٹرز ہیں وہاں پہ جن پہ ٹائرنٹ اور یہ جو ظالم فوج ہے جو کشمیر میں اس کی انڈیا کی ٹائرنٹ اور بروٹل فورسز جو ہیں ان کے ہاتھوں ان کا نشانہ بن رہی ہیں. ہماری بچیاں، ہمارے ایک اندازے کے مطابق 3000 سے زائد نوجوان جن میں بچے بھی شامل ہیں، وہ بھارتی فورسز ڈیورنگ یہ جو انہوں نے کلیمپ ڈاؤن اور کریک ڈاؤن کیا تھا، اس میں ان بچوں کو بھی اٹھایا گیا جن کی تعداد 1500 ہے اور نوجوانوں کی تعداد 3000 ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کشمیر مشن USA کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور پرومیننٹ کشمیری لیڈر ہیں، کشمیر کی وائس ہیں اس ملک میں، اس نیو یارک میں، اس کیپٹل آف دا ورلڈ میں
डॉक्टर मोहम्मद ताज खान साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच अतिया गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बोल सकूं। और मैं तो रिसेंटली रिलोकेट हुई हूँ पाकिस्तान से, और कश्मीर के लिए हम लोग हमेशा ही खड़े रहे हैं और पाकिस्तानी हर फोरम पे खड़े रहे हैं। तो कहते हैं कि उजले दिन उसके कदम चूमने आ जाते हैं, ज़्यादा शौक में जो आप लापा होता है, ना कोई खुद से अच्छा होता है ना बुरा होता है, आदमी वक्त के सांचे में ढला होता है, और सिर्फ किरदार ही अजमत की कसौटी, वरना क्या किसी शख्स के माथे पर लिखा होता है। इस वक्त जो कश्मीरी बहन भाई जद्दोजहद कर रहे हैं, तो पासो के प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है मुझे जब न्यूयॉर्क आने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे जो औरतें जिस तरह अकेली हैं और अपनी फैमिली संभाल रही हैं, वो बेवाएँ, वो यतीम बच्चे और वो मासूम बच्चियाँ जिनको रेप कर दिया गया, वो फिर भी अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हट रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़ाहिर है हम पासो के प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करते हैं। और अकेली औरत का दुनिया में, चाहे वो पासो में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, वो स्ट्रगल कर रही है। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, चाहे आप कहीं भी रहें। मैंने इसलिए जूता मारा कि मुझे शुरू से हिंदुओं से नफरत है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो उस वक़्त कश्मीर से सहरी के टाइम पे एक दुआ आती थी जिसे हम सुनते थे और हमारा खून जो है खोलता था। फिर सन 65 की जंग हुई, उसमें हमने महाज पे जाकर फौजियों के साथ लड़े, उनके हर तरह से मदद की। और हिंदू जितनी बुज़दिल कौम मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। प्लेटफॉर्म से इस तरह का प्रोग्राम का इनकाद करना एक काबिल तहसीन और कश्मीरियों के लिए एक नया वलवला जो है उसके लिए, उसका जज्बे को उभारने के लिए मैं मोहतरमा अतिया शनाज और डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और चंद अल्फाज में इसका अहाता करूँगा कि हम सब कहते हैं कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और अगर याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, तो जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। ये मुसलमानों का हक है और मुसलमानों का टेरिटरी है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी, इसमें पार्टी का जिक्र तो नहीं होना चाहिए लेकिन जिक्र ज़रूरी भी है क्योंकि बंदे की अपनी एक ज़ाती पहचान होती है। पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद जो है वो कश्मीर को आज़ाद कराना। हर वक्त ज़हन नशीन करना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, माएँ, बेटियां, हम सब उनके साथ हैं। और जो खास खाना कब्ज़ा जो है मोदी ने इस वक्त कश्मीर पे किया हुआ है, मैं मुतालबा करूंगा मोदी से कि वहाँ से इंडिया की आर्मी को फौरी तौर पे निकाला जाए और उनके कश्मीरियों को जो है उनको हकूक़ की आज़ादी दी जाए फौरी तौर पर। इसके साथ ही पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं ये मुतालबा करूंगा कि कश्मीर के बारे में फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए, यूएनओ में जाए, जहाँ भी जाके वहाँ से भारतीय कब्जा जो है, भारतीय आर्मी जो लाखों में वहाँ पे है, उनको फौरी तौर पे वहाँ से निकाला जाए। इंडिया को जो करना होता है वो तो कर लेता है, उसने बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया, और हम लोगों के पास और कुछ होता नहीं है क्योंकि हम लोग वीक हैं। तो हम यूनाइटेड नेशन का बजाते रहते हैं दरवाज़ा कि भाई यूनाइटेड नेशन कुछ करेगा, नॉट लाइक इंडिया। उस वक्त पाकिस्तान भी चाहता तो ले जा सकता था यूनाइटेड नेशन में इंडिया को, लेकिन इंडिया ने जो करना था वो कर लिया, उसने ले लिया बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान तोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत होती नहीं है कभी भी। जितने भी इंडिया के लीडर्स हैं, जितने भी इंक्लूडिंग मोदी, सब कश्मीर का उन्होंने कश्मीर में उन्होंने कत्लो गारत किए है, बहनों की, माँ बहनों की, सबकी उन्होंने इज्जतें पामाल की हैं फौज के जरिए। लेकिन हम लोग वही एक लाख रात के रहते हैं कि भाई वो यूनाइटेड नेशन करेगा जो करना है। सारे आते हैं करके चले जाते हैं भाई तकरीरें कि भाई ये होगा ऐसे फॉर्मल, इस जगह पे आप जाएं, ऐसे आप करें, फलाना बंदा करेगा तो उसकी सुनवाई देगी। कुछ नहीं सुनने वाला भाई। आप भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा, जनरेशन भी आएंगी, कश्मीर वैसे ही खड़ा रहेगा आपके सामने। कश्मीर ने कहीं नहीं जाना, ना इंडियंस ने निकलना है। प्रोग्राम बहुत अच्छी चीज़ है, ये जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें फॉलो भी करना चाहिए। और सबसे अहम बात है, जैसे मिसाल में दिन अतिया शनाज है, माशाल्लाह इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है अमेरिका में,
अमेरिकन सियासत में। अब देखें ये खड़े होके किसी काउंसिल मैन के साथ, कांग्रेस वुमेन के साथ और एकेडम के साथ कश्मीर कॉज पे जब बात करेंगे तो इनकी आवाज़ गौर से सुनी। Being a Pakistani, being a Muslim here, so my heart feels and breathes with that Kashmir as well. We all care about the Kashmir throughout all this coming era, paying respect. Thank you very much, and we all stay united and together. Keep up the good work, Paswo. Thank you very much. हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। सब इधर देखें भाई। आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, हमारा आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर।